दुनिया में जितने देश हैं उतनी ही मान्यताएं हैं। हर देश में लोगों के अलग अलग रिवाज हैं, आस्थाएं हैं, त्योहार हैं और वो उनको धूमधाम से मनाते हैं। भारत में भी कई धर्म, जाति, समुदाय हैं जिनके अपने त्योहार साल भर मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है जिसे ओणम कहते हैं। इस त्योहार में लोग खास तरह का डांस करते हैं जिसमें वो बाग बनाकर सड़कों पर नाचते हैं, जिसे पुलिकाली डांस कहते हैं। आइए जानते हैं पुलिकाली डांस का इतिहास। पुलिकाली भारत के केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला है। यह ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया जाता है, जो एक वार्षिक फसल उत्सव है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल में मनाया जाता है। ओणम उत्सव के चौथे दिन चमकीले पीले, लाल और काले रंग में बाघ और तेंदुए की तरह चित्रित कलाकार अपनी पेट हिलाते हैं और उडुक्कू और थाकिल जैसे वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। पुलिकाली का शाब्दिक अर्थ बाघ नृत्य है, इसलिए यह प्रदर्शन बाघ के शिकार की थीम के इर्द गिर्द घूमता है। लोक कला मुख्य रूप से केरल के त्रिशूर जिले में प्रचलित है। शो देखने के लिए सबसे अच्छी जगह ओणम के चौथे दिन त्रिशूर है, जहां पूरे जिले से पुलिकली मंडलियां अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होती हैं। यह त्योहार त्रिशूर शहर में हजारों लोगों को आकर्षित करता है। पुलिकाली कई अन्य त्योहारी मौसमों के दौरान भी किया जाता है। पुलिकाली की उत्पत्ति 200 वर्ष से अधिक पुरानी है, जब कहा जाता है कि कोचीन के तत्कालीन महाराजा रामवर्मा सक्थन थम्पुरम के लोक कला की शुरुआत की थी। वे बाघ के रूप में सजी धजी कला का प्रदर्शन करते थे, जिसमें बाघ के समान अजीब कदम होते थे, जिसे उस समय पुली कैट काली के नाम से जाना जाता था, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक आनंद लिया जाता था। इस घटना की याद में त्रिशूर में पुलिकाली आयोजित किया जाता है। From the graceful elegance of Bharatnatyam to the pulsating energy of Bhangra, India's dance forms are as rich and varied as its history and culture. Let's begin with the grand names of Indian classical dance. Bharatnatyam, originating in Tamil Nadu, is a storytelling art form. Its intricate footwork, expressive hand gestures, and dramatic eye movements narrate ancient epics and Hindu mythology. Odissi from Odisha is known for its lyrical grace and captivating storytelling. The flowing movements, inspired by temple sculptures and nature, tell tales of love, devotions, and celestial beings. Now let's crank up the tempo. Bhangra, hailing from Punjab, is synonymous with celebration and exuberance. Energetic and stomping, vigorous arm movements, and joyous shouts characterize these folk dance, often performed at harvest festivals and weddings. From the northeast, Bihu brings us the vibrant flavors of Assam. This energetic dance form, performed during the Bihu festival, celebrates spring and new beginnings. Its fast footwork, synchronized jumps, and joyous expressions reflect the spirit of the season. Indian dance is not confined to classical and folk traditions. Bollywood, the vibrant film industry, has created a unique blend of styles, from classical influences to Western inspirations. This masala of dance has captivated audiences worldwide and spawned iconic dance numbers like Chaiya Chaiya and Dilwale Dulhania Le Jayenge. The future of Indian dance is bright, with contemporary artists pushing boundaries and blending traditions with modern influences. Fusion styles like hip hop, Bharatnatyam, and Bollywood belly dance are gaining popularity, showcasing the adaptability and dynamism of Indian dance. So, there you have it,
this is just a glimpse into the vast and beautiful world of Indian dance. Each form reflects the unique culture and spirit of its region, making it a true treasure trove of rhythm, expressions, and storytelling. So, put on your dancing shoes, explore these vibrant styles, and get ready to be captivated by the magic of Indian dance. Let me know in the comments below which Indian dance form is your favorite. And don't forget to like and subscribe for more cultural explorations. Until next time, happy dancing! भारत में कई राज्य हैं और सभी राज्य की कई खासियत होती हैं जो उस राज्य को अनोखा बनाती हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र राज्य में भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें एक है लावनी डांस फॉर्म। आप सब ने भी इसका नाम जरूर सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसका इतिहास और इसके प्रकार। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न लावण्य शब्द सौंदर्य है जो विभिन्न सामाजिक पहलुओं को मनोरंजक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। लावनी डांस ट्रेडिशनल गाने और डांस का कॉम्बिनेशन है। आमतौर पर लावनी डांस महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के धनघरों या चरवाहों द्वारा किया जाता है। लावनी धनग्रास द्वारा रचित काव्य है जिसे प्रकृति से प्रेरणा मिलती है। लावनी डांस में बिरूबा नामक उनके देवता के जन्म की कहानियां भी शामिल हैं। लावनी की शुरुआत 18वीं और 19वीं शताब्दी की अवधि के दौरान मनोरंजन और थके हुए सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इस डांस की लोकप्रियता पेशवाई शासन के समय से हुई है। ये शैली पुणे में अपने चरम पर पहुंची। इसमें महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा जिसमें 9 गज की खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, ढोलक की थाप पर एक साथ गाती हैं और नृत्य करती हैं, जो महाराष्ट्रियन संस्कृति की खुशी को दर्शाता है। लावनी के प्रकार को पदाची लावनी और बैठाकीची लावनी कहा जाता है। पहला तब होता है जब इसका प्रदर्शन थिएटर मंच पर या कहीं भी सार्वजनिक रूप से एक बड़ी भीड़ के सामने होता है, जबकि दूसरा रूप एक बंद और निजी सेटिंग में किया जाता है जहां नर्तक सीमित दर्शकों के सामने बैठकर प्रदर्शन करता है। ऐसे ही नृत्य से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। रासलीला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस शब्द को सुनते ही आप सबके दिमाग में श्री कृष्ण, गोपियां और मथुरा वृंदावन आए होंगे, लेकिन इस कृष्ण गोपियों वाली इस रासलीला का संबंध मणिपुर से भी है। मणिपुर में इसे रास कहा जाता है। असल में मणिपुर रास का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ है, लेकिन मौजूदा समय में मणिपुरी रास ने बेहद ही लोकप्रियता बटोरी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मणिपुरी रास के बिना मणिपुर की यात्रा ही अधूरी है। तो आइए जानते हैं मणिपुरी डांस के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। 18वीं शताब्दी के बाद से मणिपुरी नृत्य शैली के इतिहास का सही पता लगाया जा सकता है। मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में हुई है। इसे शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में सबसे नया माना जाता है। मणिपुरी नृत्य जीवन शक्ति के साथ संयुक्त एक गहरी अनुष्ठानिक परंपरा की अभिव्यक्ति है। लोकप्रिय धारणा कहती है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा मणिपुरी नृत्य शैली की निर्माता थे। फिर यह उमा और भगवान शिव थे जिन्होंने वास्तव में मणिपुर में इस रस नृत्य शैली को दोहराया था। मणिपुर का संबंध काफी हद तक घाटी के लोगों से है जो वैदिक काल के समय से हैं। पहले इस क्षेत्र में कई अनुष्ठान प्रथाएं प्रचलित थीं। इन नृत्यों ने ऐसी अनुष्ठानों की निरंतरता को बनाए रखा। उन्होंने एक अमृत डिजाइन पर नृत्य किया जो पेचीदा सर्प का प्रतीक था। 17वीं शताब्दी में हिंदू धर्म इस घाटी का राजकीय धर्म बन गया। इस रूप का विकास पहले के संस्कार नृत्यों और वैष्णव भक्ति पंथ के बीच आपसी बातचीत का परिणाम था। किंवदंतियों के अनुसार
18वीं शताब्दी में मणिपुर के एक राजा, जिसका नाम गरीब निवास था, ने वैष्णव धर्म को आधिकारिक तौर पर अपनाया। नृत्य का वर्तमान स्वरूप और प्रदर्शनों का श्रेय राजा भाग्यचंद्र महाराज को दिया जाता है। उन्होंने अपने सपने में भगवान कृष्ण और गोपियों को दिव्य नृत्य करते देखा था। रासा नृत्य और मणिपुरी की वर्तमान वेशभूषा को राजा के सपने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। राजा ने गोविंदा संगीता लीला विलास नामक नृत्य पर एक मैनुअल लिखा था। यह स्पष्ट रूप से इस नृत्य शैली का दायरा बढ़ाता है। लेखक ने रस को कई प्रकारों में विभाजित किया है: महारस, मलुरस, नीत रसा, निर्वेश रसा या कुंज रसा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र की शास्त्रीय परंपरा मणिपुरी नृत्य में श्रीमद् भगवत की पुराण परंपरा को मिश्रित किया गया है। एक अन्य राजा ने मृदंग संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। इस कार्य का श्रेय चंद्रकीर्ति को दिया जाता है और इसमें मणिपुरी में खोल नामक विशेष किस्म के ड्रम को बजाने के अत्यंत मूल्यवान विवरण शामिल हैं। अन्य ग्रंथ श्री कृष्ण रस संगति संघ भक्ति सिद्धांत द्वारा शायद मृदंग संग्रह से पहले लिखा गया था। इसमें कई गीत शामिल हैं जिनमें आज भी नृत्य किया जाता है। ये थी हमारी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर। नृत्य भारत में एक प्राचीन और प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों में से एक है कुचिपुड़ी नृत्य, जिसे उत्तर भारत में कम लेकिन दक्षिण भारत में बेहद ही पसंद किया जाता है। आज इस लेख में हम आपको शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आप भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। कुचिपुड़ी दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध नृत्य शैली है। विजयवाड़ा और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा इस नृत्य को संरक्षित किया गया है। प्रारंभ से कुशलवा नामक लोगों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाने लगा था। इस नृत्य को रात के समय मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था, जब ग्रामीण अपने खेतों के दिन भर के कार्य से फ्री होकर वापस लौटते थे, जिसे अरंडी के तेल से जलते हुए दिए के प्रकाश में प्रस्तुत किया जाता था और केवल ब्राह्मण ही इस नृत्य का मंचन करते थे। पहले ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया और तब से यह नृत्य महिलाओं के बीच में भी लोकप्रिय हो गया। वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तादेपल्ली पेराया ने महिलाओं को भी इसमें शामिल किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस नृत्य को पुनः प्रभाषित सिद्धेंद्र योगी जी ने किया, जो एक कृष्ण भक्त संत थे और नाट्य शास्त्र में पारंगत थे। सिद्धेंद्र योगी ने परिजात हरणम नाट्यवाली की रचना की। इस नृत्य में बीच बीच में कई बदलाव भी आए, जैसे डॉक्टर वेमापति चिन्ना सत्यम ने इसमें बदलाव किए और नृत्य संरचना तैयार की। श्री सिद्धेंद्र योगी जी ने भामा कल्लापम नृत्य नाटिका की भी रचना की, जिसमें सत्यभामा के कृष्ण जी में विलीन होने के बारे में बताया है। यह नृत्य शैली भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस नृत्य शैली के अंतर्गत नृतक गाते हैं और दर्शकों से संवाद करते हैं। यह नृत्य कथानक पर आधारित है, जिसमें कुछ भाग संवाद रूप में, कुछ भाग नाटक रूप में व कुछ मुख्य मुद्राओं में अभिव्यक्त किए जाते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के कुछ तत्व भी हैं जो निम्नलिखित हैं। मंडूक शब्दम, इसमें मेंढक की कहानी के विषय में बताया गया है। तरंगम, इसमें पीतल की थाली के किनारों पर पैर को संतुलित किया जाता है। सर पर पानी से भरा घड़ा संतुलित करके नृत्य किया जाता है। यह शैली सबसे अधिक लोकप्रिय है। थाली के बीच में 2 दीपक भी जलाए जाते हैं। जलचित्र नृत्यम, इसमें नृत्य करने के साथ साथ पैरों के अंगूठे से जमीन पर आकृति बनाई जाती है। यह शैली भी आकर्षक है। कुचिपुड़ी नृत्य के 4 मुख्य अंग हैं, जो इस प्रकार है। पहला वाचिका, दूसरा आहार्य, तीसरा अंगिका, चौथा सात्विका। इस नृत्य की कुछ विशेषताएं भी हैं। नृत्य की शुरुआत करने से पहले परंपरागत तरीके से पूजन किया जाता है। पूजन के पश्चात नृतक मंच पर आते हैं और धारवू के द्वारा परिचय देते हैं।
इस नृत्य के माध्यम से भागवत पुराण की कहानियों को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। नृतकों को भागवत थालू कहा जाता है, जो कुचिपुड़ी गांव के हैं। इनका पहला समूह सन 1502 में बना। नृत्य और गायन दोनों एक ही कलाकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से मानव शरीर में पृथ्वी में व्याप्त तत्वों को बताया जाता है। इस नृत्य में लास्य और तांडव दोनों महत्वपूर्ण हैं। नृत्य के लिए वायलिन, बांसुरी, तंबूरा, मंजीरे और मृदंग आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक नृत्य नाटिका में लगभग 80 नृत्य क्रम होते हैं, जिसे दारू कहते हैं। नृत्य के प्रारंभ में प्रत्येक चरित्र दारू के मंचन के साथ अपना परिचय देता है। अपने परिचय को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पात्र को एक गीत दिया जाता है। दारू एक लघु रचना होती है जो चरित्र के रहस्योद्घाटन के लिए होती है। इस नृत्य शैली में श्रृंगार रस को दर्शाया जाता है। नृत्य में पहने जाने वाले वेशभूषा की बात करें तो इस नृत्य में पहने जाने वाले वस्त्र और आभूषण परंपरागत होते हैं, जो कि बहुत आकर्षक होते हैं। आभूषणों का निर्माण बोरगू नामक एक लकड़ी से किया जाता है, जो कि बहुत हल्की होती है। इसका प्रचलन लगभग 17वीं सदी से चला आ रहा है। अधिकतर नर्तक और उनके परिवारजन स्वयं आभूषणों को बनाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, भावना रेड्डी और इंद्राणी रहमान हैं। राजा और राधा रेड्डी पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित है। मुंगरा यामिनी रेड्डी भी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित हैं। विजयवाड़ा जिले में विश्व के 6117 नृतकों ने साथ में नृत्य किया था। तब इस नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि कुचिपुड़ी गांव के लगभग सभी लोगों को इस नृत्य का अच्छा ज्ञान है। यह नृत्य पितृ प्रधान है। नृतकों को इस नृत्य का ज्ञान अपने पिता से मिला है। परंपरा के अनुसार नृत्य को पुरुष ही करते हैं या वे स्वयं स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं। वास्तव में यह नृत्य सभी के मन को लुभावने वाला है, लेकिन इस नृत्य के विषय में लोग कम जानते हैं। आशा है कि इस लेख के माध्यम से आपको इस नृत्य की संपूर्ण जानकारी मिल सके। ये थी हमारी जानकारी कुचिपुड़ी डांस के बारे में। भारत अलग अलग परंपराओं का देश है। यहाँ जितने राज्य हैं उनकी उतनी ही परंपराएं हैं और उनके उतने ही कल्चर हैं। भारत के हर राज्य की अलग अलग डांस फॉर्म भी हैं। ऐसे कि ओडिशा राज्य का लोकप्रिय डांस फॉर्म है ओडिसी। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। माना जाता है कि ओडिसी डांस देश के सबसे पुराने लाइव क्लासिकल डांस रूपों में से एक है, जिसकी जड़ें ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ओडिशा के मंदिरों से जुड़ी हैं। भारत के अन्य सभी क्लासिकल डांस रूपों की तरह ओडिसी को भी मंदिर पूजा के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया था। कोणार्क के मंदिर की दीवारों पर अलग अलग डांस पोस्चर को प्रदर्शित करती उकेरी गई ज्वलंत मूर्तियां इसकी गवाही देती हैं। ओडिशा की उत्पत्ति किसी भी तरह से अन्य इंडियन ट्रेडिशनल डांस रूपों से अलग नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पारंपरिक नृत्य शैलियाँ आकाशीय मंडल से ऊपर उठती हैं। नृत्य की चाल, अभिव्यक्ति और मुद्राएं भगवान शिव के तांडव नृत्य और भगवान विष्णु द्वारा उनके मोहिनी अवतार के किए गए नृत्य से काफ़ी प्रभावित हैं। अब बात करते हैं डांस के टाइप्स की। तो ओडिसी नृत्य पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका की शैली है। इसके 2 प्रमुख स्थितियां हैं, चौक और त्रिभंग। चौक, इस मुद्रा में डांसर अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाती हैं और घुटने थोड़ा सा मोड़ लेती हैं। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लेती हैं। नवरसों और विभिन्न मुद्राओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह मस्कुलिन पोस्चर कहलाती है। त्रिभंग, शरीर को 3 भागों सर, शरीर और पैर में बांटकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के जैसी होती हैं। इसमें भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की कथा बताते हैं। इस मुद्रा के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया जाता है। यह नृत्य श्री कृष्ण जी को समर्पित है।
इसमें आए हुए छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम में से लिए गए हैं, जो जयदेव जी द्वारा रचित है। यह फेमिनी पोस्चर कहलाती है। श्रृंगार करते हुए नर्तकी अपने आप को दर्पण में देखती है। इस मुद्रा को दर्पणी भंगी कहते हैं। डांसर अपने सखी को आगे की तरफ झुक जाती है और दोनों हाथों को बंडल की मुद्रा में एक दूसरे से जोड़ लेती है और शरीर त्रिभंग मुद्रा में होता है। यह एक अन्य अभिनय मुद्रा है। डांस में यूज हैंड मूवमेंट की सिंबॉलिक भाषा को हस्ता कहते हैं, जो प्रतीकों, भावनाओं और शब्दों विचारों को बताती है। कोणार्क के सूर्य मंदिर में इन मुद्राओं को देखा जा सकता है, जो अलसा और दर्पणी सहित कई भंगी मुद्राओं का प्रमाण देती है। लगभग सभी नृत्य के लिए बांसुरी मुद्रा बनाई जाती है। ओडिशा में बांसुरी को वेणु कहा जाता है और इस नृत्य में बांसुरी को प्रदर्शित करने के लिए विशेष तरह की मुद्रा बनाई जाती है। ओडिसी नृत्य अलग अलग प्रोसीजर से गुजरता है। मंगलाचरण यह प्रारंभिक एकक है, जिसमें नृत्यकी पुष्प लेकर मंच पर जाती है और धरती माँ को पुष्प अर्पित करती है और इष्ट देव, गुरु और दर्शकों का अभिवंदन करती है। बटु नृत्य इस एकक में चौक और त्रिभांगी को दर्शाया जाता है। पल्लवी इसमें गीत की प्रस्तुति की जाती है। संगीतात्मक संयोजन को नर्तकी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। थारीजाम यह विशुद्ध नृत्य का भाग होता है। त्रिखंड मंजूर यह नृत्य का समापन भाग है। ओडिसी नृत्य की नाट्य मंडली में आमतौर पर एक पखावाज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक, एक सितार या वीणा वादक, एक मंजीरा वादक और नर्तक होते हैं। नर्तकी विशेष तरह के आभूषणों को धारण करती हैं, जो चांदी के बने होते हैं। बालों की सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव होती है। बड़े आकार का जूड़ा बनाया जाता है, जिसको पुष्पों और आभूषणों से सजाया जाता है। माथे पर चांदी का टीका लगाया जाता है। इसमें साड़ी पहनने की विशिष्ट प्रक्रिया है। ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वक्त के साथ भांगड़ा और गिद्दा का स्वरूप बदलता रहा है, किंतु आज भी फसल की कटाई के साथ ही ढोल बजने लगता है। ढोल हमेशा से ही पंजाबियों का साथी रहा है। ढोल से धीमे ताल द्वारा मनमोहक संगीत निकलता है। वैसाखी और लोहरी पर पारंपरिक रूप से स्त्रियां भांगड़े में सम्मिलित नहीं होती हैं। वे अलग आंगन में अलाव जलाती हैं तथा सम्मोहक गिद्दा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के लोकप्रिय नृत्य गिद्दा के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका नृत्य रचिता में। गिद्दा भारत और पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है। यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में जाना जाता था। यह भांगड़ा के समान ही ऊर्जावान होता है। साथ ही यह एक ही समय में रचनात्मक रूप से स्त्री अनुग्रह, लालित्य और लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। यह बहुत ही रंगीन नृत्य है, जिसका अब देश के सभी क्षेत्रों में अनुकरण किया जाता है। महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। नृत्य के बाद लयबद्ध ताली बजाई जाती है और पृष्ठभूमि में वृद्ध महिलाओं द्वारा एक विशिष्ट पारंपरिक लोकगीत गाया जाता है। कहा जाता है कि गिद्दा की उत्पत्ति प्राचीन रिंग नृत्य से हुई थी, जो पुराने दिनों में पंजाब में प्रमुख था। गिद्दा पंजाबी स्त्रीत्व प्रदर्शन की एक पारंपरिक विधा को प्रदर्शित करता है, जैसा कि पोशाक, कोरियोग्राफी और भाषा के माध्यम से देखा जा सकता है। 1947 में भारत के विभाजन और पश्चिम पंजाब और पूर्वी पंजाब में पंजाब के विभाजन के बाद से भारतीय पंजाबियों ने लोक नृत्य को समेकित किया है, जिसमें इनका मंचन किया गया है और पंजाब की संस्कृति के प्रमुख अभिव्यक्तियों के रूप में इन्हें प्रचारित किया गया, जबकि गिद्दा का रूप विभाजन से गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। गिव श्रेफलर लिखते हैं कि इसे महिला नृत्य के रूप से वर्गीकृत किया गया है। अन्य नृत्यों की तुलना में गिद्दा पंजाब का एक बहुत ही जोरदार लोक नृत्य है और
इसमें पैरों का मामला शामिल है। इसके तेज हिस्सों में पैरों की गति इतनी तेज होती है कि दर्शकों के लिए पलक झपकाना भी मुश्किल हो जाता है, जब तक कि गति फिर से गिर ना जाए। नृत्य करने वाले लोगों की पोशाक में कढ़ाई वाले दुपट्टे और भारी आभूषण शामिल होते हैं, जिनकी संख्या अप्रतिबंधित होती है और गतिविधियों को और बढ़ा कर पेश करती हैं। गिद्दा महिलाओं और युवा लड़कियों द्वारा पारिवारिक और उत्सव के अवसरों पर नृत्य किया जाता है। लड़कियां और महिलाएं एक घेरा बनाती हैं, जिसमें उनका एक नंबर केंद्र में होता है। गिद्दा महिलाओं का उत्साहपूर्ण नृत्य रूप है। गिद्दा में नृत्यक छंद प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें बोली कहा जाता है, जो आमतौर पर लोक कविता को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करते हैं। बोलियों की विषय वस्तु वास्तव में दैनिक जीवन की हर चीज से लेकर होती है, जैसे भाभी के साथ बहस से लेकर राजनीतिक मामले तक इन जीवन गीतों में शामिल होते हैं। ढोल के साथ साथ इस नृत्य की लय नर्तकों की विशिष्ट तालियों से निर्धारित होती है। मिमिक्री गिद्दा नृत्य शैली का एक हिस्सा है। मनोरंजन के लिए एक लड़की वृद्ध दूल्हे और दूसरी उसकी पुख्त दुल्हन की भूमिका निभा सकती है, या एक झगड़ालू भाभी और दूसरी विनम्र दुल्हन की भूमिका निभा सकती है। आज भारत में गिद्दा ज्यादातर अमृतसर शहर में किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में यह अभी भी लाहौर में लोकप्रिय है। अब हम बात करेंगे गिद्दा की ड्रेस कोड की। गिद्दा नृत्य के दौरान पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक घाघरा या लहंगे के साथ छोटी महिला शैली की शर्ट या एक साधारण पंजाबी सलवार कमीज है, जो रंग, कपड़े और डिजाइन से भरपूर है। वे जो आभूषण पहनते हैं वे हैं सुग्गी, फुलटो, पायल, हार, हमेला, बाजूबंद और रानी हार। गिद्दा के लिए पारंपरिक पोशाक महिलाओं के लिए काफी सुंदर है। यह स्त्री की शोभा में और अधिक आकर्षण जोड़ता है और इतना ही आरामदायक है कि महिलाएं आसानी से गिद्दा नृत्य कर सकती हैं। गिद्दा पोशाक काफी सरल है और ग्रामीण पंजाब में महिलाओं को इसे हर रोज पहने हुए देखा जा सकता है। अंतर केवल इतना है कि गिद्दा के लिए पोशाक में चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता है और इसे भारी आभूषणों के साथ पहना जाता है। गिद्दा नृत्य शैलीगत रूप से सरल है, जिसमें घंटियों की झंकार, पैरों की थपथपाहट के साथ साथ सलवार कमीज में पंजाबी महिलाओं की भव्यता इसे देखने वाले लोगों के लिए एक मनमोहक माहौल बनाती है। गिद्दा इसलिए इतना लोकप्रिय है क्योंकि इसे किसी काटे सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता, जबकि गिद्दा आंदोलनों में सामंजस्य सी हार है, जिसमें शरीर को झूलना और मोड़ना, कंधों को हिलाना, दो तरफा झुकाना और ताली बजाना शामिल है। गिद्दा नृत्य में शामिल के कताई करने, कुएं से पानी लाने और पसीने की ग्रामीण जीवन के दृश्य को शामिल किया जाता है। गिद्दा इसलिए इतना लोकप्रिय है क्योंकि इसे किसी काटे सूखे नियम के अनुसार नहीं किया जाता है, जबकि गिद्दा आंदोलनों में सामंजस्य ही सार है, जिसमें शरीर को झुलाना और मोड़ना, कंधों को हिलाना, दो तरफ झुकाना और ताली बजाना शामिल है। गिद्दा नृत्य में महिलाएं की कताई करने, कुएं से पानी लाने और पसीने के ग्रामीण जीवन के दृश्य को शामिल किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी गिद्दा डांस के बारे में। अगर आप भी डांस के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। जानकारी तुरंत हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।